آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے سمندری طوفان کی ممکنہ خطرات۔ جنوبی پنجاب کے متعلقہ علاقوں میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ کے مطابق بائپر جوائے طوفان اس وقت شمالی ڈائریکشن سے چل رہا ہے۔ احتیاط برتنے سے نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب شہریوں اور وابستہ تنصیبات کو محفوظ رکھنے کے لیے جنوبی پنجاب سے میکو ٹیمیں کراچی کے لیے روانہ ہو چکی ہیں۔ بہاول نگر، ڈی جی خان اور وہاڑی کی امدادی ٹیمیں متوقع متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کا حصہ بنیں گی۔ متوقع طوفان سے نمٹنے کے لیے سرکل ڈی جی خان سے 18 رکنی ٹیم ہنگامی بنیادوں پر نقصانات کی مرمت اور بحالی میں مدد کرے گی۔ آپ کو بتا رہے سمندری طوفان کے ممکنہ خطرات۔ جنوبی پنجاب کے متعلقہ علاقوں میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ چیف میٹرولوجسٹ کے مطابق بائپر جوائے طوفان اس وقت شمالی ڈائریکشن سے چل رہا ہے۔ احتیاط برتنے سے نقصان سے بچا جا سکتا ہے، جبکہ دوسری جانب شہریوں اور وابستہ تنصیبات کو محفوظ رکھنے کے لیے جنوبی پنجاب سے میکو ٹیمیں کراچی کے لیے روانہ کر دی گئی ہیں۔ بہاول نگر، ڈی جی خان اور وہاڑی کی امدادی ٹیمیں متوقع متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کا حصہ بنیں گی۔ متوقع طوفان سے نمٹنے کے لیے سرکل ڈی جی خان سے 18 رکنی ٹیم ہنگامی بنیادوں پر نقصانات کی مرمت اور بحالی میں مدد کرے گی۔ اپڈیٹ کر رہے آپ کو چیف میٹرولوجسٹ کے مطابق بائپر جوائے طوفان اس وقت شمالی ڈائریکشن سے چل رہا ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں عید قربان قریب آتے ہی لڈن کی مویشی منڈی خوبصورت جانوروں سے بھر گئی۔ شہریوں کی بڑی تعداد قربانی کا جانور خریدنے کے لیے مویشی منڈی کا رخ کرنے لگی ہے۔ اس حوالے سے مزید جاننے کے لیے دیکھتے ہیں بلال شاہ کی جویا کی رپورٹ۔ عید قریب آتے ہی لڈن کے مویشی منڈی میں خوبصورت جانوروں کی رونق لگ گئی۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے جانوروں کی خریداری کے لیے مویشی منڈی کا رخ کیا۔ منڈی میں خوبصورت موٹے تازے جانور دیکھ کر گاہک خوش تو ہوتے ہیں، لیکن دام سنتے ہی ان کی ساری خوشی غائب ہو جاتی ہے۔ چونکہ شوق کا کوئی مول نہیں، اس لیے کہیں کوئی خریدار جانوروں کے دانت پر رکھتا دکھائی دیتا ہے تو کسی کی تمام تر توجہ اس کے وزن اور خوبصورتی پر ہے۔ منڈی میں انتظامات بہتر نہ ہونے پر خریدار اور ویوپاری انتظامیہ سے ناراض نظر آتے ہیں۔ مہنگائی کی وجہ سے دام نہیں لگ رہے۔ خریدار آ کر بولتا ہے ریٹ اتنا ہو گیا، خریدار کو اتنا نہیں پتا کہ راشن بہت مہنگا ہو گیا۔ جو آدمی کھاتے وہ بھی مہنگا، جو جانور کھاتے وہ بھی مہنگا راشن۔ قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے خریداری کا رجحان کم دکھائی دے رہا ہے۔ ویوپاری کہتے ہیں کہ مہنگے چارے اور بڑھتے کرایوں کے باعث جانور سستے بیچنا ممکن ہی نہیں رہا۔ اگر جانور فروخت نہ بھی ہوئے تو گھر واپس لے جانے کو ترجیح دیں گے۔ مجھے 2-3 گھنٹے ہو گئے یہاں پہ پھرتے ہوئے، مجھے جانور جو ہے وہ مناسب قیمت میں نہیں مل رہا۔ ریٹ بڑھنے کے لیے کی وجہ سے نا جو ہے ویپاری بھی پریشان ہے اور جو ہے خریدار وہ بھی پریشان ہے۔ جی، جانوروں کی قیمتوں میں ہر سال اضافے کے باوجود قربانی کے سلسلے میں کمی تو نہیں آئی، تاہم مہنگائی کے باعث اجتماعی قربانی کا رجحان ضرور بڑھ گیا۔ کیمرامین محمد علی بوتلا کے ساتھ بلال شاہ کی جویا، روہی، لڈن۔ اور آپ کو بتائیں گے جہانیہ میں گرمی کی شدت بڑھتے ہی بچوں میں چکن پاکس اور خسرے کی وبا پھیل گئی۔ شہر اور نواحی علاقوں میں بہت سے بچے چکن پاکس میں مبتلا ہو کر علاج کے لیے تحصیل ہسپتال جہانیہ آ رہے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں امجد حسین بٹے کی اس رپورٹ میں۔ جہانیہ میں چکن پاکس اور خسرے کی وبا پھیل گئی۔ شہری اپنے بچوں کو علاج کے لیے تحصیل ہسپتال لا رہے ہیں۔ چکن پاکس کے مرض میں جسم پر سرخ رنگ کے دانے نمودار ہوتے ہیں۔ اس سے بچوں کو تیز بخار اور جسم میں شدید درد رہتا ہے۔ ایم ایس ڈاکٹر زہیب صادق کا روہی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ گزشتہ روز اور آج ہسپتال میں خسرے میں مبتلا 35 بچے لائے گئے ہیں، جن کو فری علاج کی سہولت دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خسرے اور چکن پاکس والے بچوں کو دوسروں سے الگ رکھیں تاکہ مرض دوسرے بچوں کو منتقل نہ ہو سکے۔ جو نشانیاں ہیں اس میں سب سے پہلے سینے، بازوؤں پر دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں، سرخ، پانی بھرے، اور ساتھ میں ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے۔ تو اس میں کوئی گھبرانے یا پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، یہ وائرل ڈیزیز ہے۔ 7 to 10 ڈیز کے اندر یہ خود بخود ریلیپس ہو جاتی ہے۔ فرسٹ ڈوز اس کی جو ہوتی ہے بچوں کو وہ 9ویں مہینے پہ ہوتی ہے، اور جو سیکنڈ ڈوز ہے وہ 15 منتھ پہ ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد چانسز جو ہیں وہ چکن پاکس کے وہ بہت حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ تو عوام سے التماس ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پراپر ویکسینیشن کروائیں۔ ڈاکٹرز نے کہا 9 ماہ کے بچوں کو خسرہ کی پہلی ویکسین لگوانی چاہیے اور دوسری ویکسین 15 ماہ کے بعد لازمی لگوائی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ امجد حسین بوٹر، روہی نیوز، جہانیہ۔ اب آپ کو بتائیں سرکاری ریٹائرڈ ملازمین کے لیے بری خبر ہے۔ حکومت پنجاب نے ایل پی اے قانون میں تبدیلی کر دی، جس سے سرکاری ملازمین کی پینشن میں 8 سے 20 لاکھ تک کمی کی گئی ہے۔ ایپکا ملازمین نے حکومتی قانون میں تبدیلی کو مسترد کر دیا۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں رحیم خان سے عامر بھٹی کی رپورٹ۔
हुकूमत पंजाब ने सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में लाखों रुपए की कमी कर दी। हुकूमत पंजाब ने LPA कानून में तब्दीली कर दी और बुनियादी तनख्वाह को इब्तदाई सैलरी पेंशन में तब्दील कर दिया, जिससे पंजाब के तमाम इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 8 से 20 लाख रुपए की कमी हो गई, जिसका इतलाक 1 जून से कर दिया गया। आप देखें कि आपने तनख्वाहों में सिर्फ 35% इजाफा किया, जबकि आपका ही एक सरकारी इदारा शुमारियात जो है उसने रिपोर्ट दी है कि पिछले जून से इस जून तक महंगाई में 149% इजाफा हुआ, लेकिन आपने तनख्वाहें तो 35% बढ़ाई हैं। हमने उस पर भी तो सब्र किया है ना, हमने तो नहीं आपको कहा, फिर जब आपने कहा कि जी 35% बढ़ा सकते हैं तो हमने उस पर कहा कि ठीक है, हमने आपका शुक्रिया अदा किया। जिले सदर ऐप का यूनिट एजुकेशन उमर इजाज वड़ैच का कहना था कि बजट में भी मुलाजमीन को मुकम्मल रिलीफ नहीं दिया गया। मुलाजमीन महंगाई की चक्की में पीस कर रह गए। हुकूमत ने मुलाजमीन की पेंशन में कटौती करके मुलाजमीन का मुआशी कत्ल किया है। ये एक काला कानून है, इसको हम मुस्तरद करते हैं। और सबसे अहम बात जो है वो इसमें ये है कि जो भी केयर टेकर गवर्नमेंट होती है वो ना तो कोई नया कानून बना सकती है, ना ही किसी पहले से बने हुए कानून में तरमीम कर सकती है। आप देखें कि आपने तनख्वाहों में सिर्फ 35% इजाफा किया, जबकि आपका ही एक सरकारी इदारा शुमारियात जो है उसने रिपोर्ट दी है कि पिछले जून से इस जून तक महंगाई में 149% इजाफा हुआ। ऐप का मुलाजमीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुलाजमीन की साबका रिटायरमेंट पेंशन बहाल की जाए ताकि मुलाजमीन के मुआशी मसाइल हल हो सकें। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। सियासी खबर दें। मुल्तान में चेयरमैन मार्केट कमेटी और रहनुमा तहरीक इंसाफ शेख ताहिर भी पार्टी छोड़ गए। कहते हैं बतौर एक सियासी वर्कर और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी इनके लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। 9 मई के वाकयात की मजम्मत करता हूँ। तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी दोनों से ऐलान ला ताल्लुकी करता हूँ। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं जुनैद अनवर की रिपोर्ट। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी को बड़ा झटका। वाइस चेयरमैन PTI के करीबी साथी व चेयरमैन मार्केट कमेटी शेख ताहिर का पार्टी छोड़ने का ऐलान। मुल्तान प्रेस क्लब में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए शेख ताहिर का कहना था कि शाह महमूद कुरैशी ने पार्टी के अंदर एक पार्टी बना रखी थी। वर्कर्स की बजाय हमेशा अपने बच्चों को अहमियत दी। उन्होंने पार्टी को विरासती बना दिया। शाह महमूद कुरैशी ने पार्टी के अंदर एक पार्टी बना रखी थी। उनको हमेशा अपनी औलाद को तरजीह दी है और जो उन्होंने सियासत को एक वरासती सियासत बनाया हुआ था। शेख ताहिर का मजीद कहना था कि शाह महमूद कुरैशी ने इनसे कई बार पार्टी टिकट का वादा किया और फिर अपने बेटे को टिकट जारी कर दिया। वो पार्टी के साथ साथ शाह महमूद कुरैशी से भी अलहदगी का ऐलान करते हैं। सबसे पहले मुझे अपना वतन अजीज़ है और पाक फौज से हमेशा वाराना मोहब्बत मेरे खून में शामिल है। रियासत के लिए सियासत समेत सब कुछ कुर्बान है। तहरीक इंसाफ से आज अलहदगी का ऐलान करता हूँ। शेख ताहिर ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी से कहना चाहता हूँ कि पार्टी ऐसे नहीं चलती। एक सियासी वर्कर ही पार्टी चलाता और काम काज छोड़कर पैसे लगाता है। उन्होंने 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हुए कहा कि ये हरकत करने वालों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ जुनैद अनवर, रोही, मुल्तान। मुल्तान में तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों की लाइन लग गई। तहरीक इंसाफ लेबर विंग के जनरल सेक्रेटरी शहरयार भुट्टा ने भी पार्टी को खैरबाद कह दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इनका कहना था कि तहरीक इंसाफ ने पार्टी कारकुनान को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया है। मजीद इस रिपोर्ट में। मुल्तान में तहरीक इंसाफ लेबर विंग के जनरल सेक्रेटरी शहरयार भुट्टा का भी पार्टी छोड़ने का ऐलान। मुल्तान प्रेस क्लब में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हैं। हमने बेगुनाह कैद काटी, 1 महीना जेल में रहे। पार्टी ने हमें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया। उमर अफजल साहब डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जिला मुल्तान ये भी मेरे साथ मौजूद हैं। हम तमाम लोग पार्टी से ला तल्की का ऐलान करते हैं और हम ये बात वाज़े कर देना चाहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी भी हमारी है और ये पाकिस्तान भी हमारा है। हम पाकिस्तान आर्मी के साथ तब भी जब पार्टी में रहते थे तब भी हम इस महाज इराई के खिलाफ थे और आज भी हम खिलाफ हैं। शहरयार भुट्टा का कहना था कि वो अपने पार्टी ओहदे से इस्तीफा देते हैं। उन्होंने पार्टी के साथ सियासत से भी लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। भी जो 9 मई को वाकयात हुए उसकी हम मजम्मत करते हैं और उसके लिए हमने बेगुनाह कैद भी काटी, 1 महीना जेल में रहे। इस पर जो हमारी पार्टी का जो रवैया था वो इंतहाई मायूस कुन था। जो वर्कर गिरफ्तार हुए, जो कारकुनान गिरफ्तार हुए, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है।
पार्टी ने उन्हें पूछना तक मुनासिब नहीं समझा। शहरियार भुट्टा का मजीद कहना था कि हम पर कोई दबाव होता तो 1 महीना जेल न काटते। तमाम सियासतदान अपने वर्कर्स को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। हम कैद में थे तो पीटीआई क़यादत ने किसी वर्कर को नहीं पूछा। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। मेयर कराची का इंतखाब कल होगा। जमात इस्लामी मुल्तान का कराची में मैंडेट तस्लीम न करने के खिलाफ एहतजाज। ज़िला अमीर डॉक्टर सफदर हाशमी का कहना था कि जमात इस्लामी के मैंडेट पर शब खून मारा जा रहा है। जमात इस्लामी मुल्तान कराची में अपना मैंडेट तस्लीम ना किए जाने पर सरापा एहतजाज। जमात इस्लामी के कारकुनान ने कचहरी चौक में एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत ज़िले अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी ने की। रोही से गुफ्तगू में सफदर हाशमी का कहना था कि पीपल्स पार्टी की फस्तायत को मुस्तरद करते हैं, चेयरमैन्स के अगवा की हर सूरत मजम्मत करते हैं। जमात इस्लामी ही कराची के अवाम की नुमाइंदा जमात है। अफसोस है इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की बी टीम का किरदार अदा कर रहा है। पीपल्स पार्टी और उस दूसरे इत्तेहाद के कुल मिलाकर 170 से कम है, तो किसी भी तरीके से कोई भी जमहूरी तरीकाकार ऐसा नहीं है जिसके मुताबिक जो है पीपल्स पार्टी अपना मेयर ला सकती है। लेकिन फस्ताई हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लोगों को अगवा किया जा रहा है घरों से, और फिर जबरदस्ती पुलिस कस्टडी में उनसे बयानात दिलवाने की कोशिश की जा रही है। पार्टी कारकुनान ने कहा कि पीपल्स पार्टी अपनी फस्तायत, धौंस और दहशतगर्दी से राय को बदलने का सिलसिला बंद करे। कुल जमहूरी निज़ाम को चलते हुए देखना चाहते हैं। लोगों का अगवा किया जा रहा है, लोगों की सियासी व्यवस्थाएं चेंज की जा रही हैं। ये मुल्क जमहूरियत नहीं बल्कि ये दहशतगर्दी है जो जरदारी के पीछे इसकी सारी प्लानिंग है। फौरी तौर पर नोटिस लेकर जिसका हक बनता है उसको मेयर मुंतखब कराया जाए। जमात इस्लामी के कारकुनान ने इस मौके पर पीपी और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जामिया सरगोदा में चीनी कौंसल जनरल का सेमिनार से खिताब। कहते हैं कि सीपैक कोई फौरी असर करने वाली दवा का नाम नहीं है, बल्कि ये गैर मामूली नौयत का तजारती मंसूबा है। मज़ीद इस रिपोर्ट में। चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के 10 साल मुकम्मल। जामिया सरगोदा में इस मौका पर सेमिनार का इनाकाद किया गया। सेमिनार में चीनी कौंसिल के जनरल जाओ शेरीन, चीन में साबिक पाकिस्तानी सफीर नुमाना हाशमी और दीगर ने खुसूसी शिरकत की। चीनी कौंसिल जनरल का अपने खिताब में कहना था कि सीपैक के खिते की तरक्की और इस्तेहकाम की बदौलत पूरी दुनिया को फायदा होगा। I just want to say that this relationship is strong and will be stronger. I mean, will be growing stronger, with each passing day. And the CPEC project will also be fast-tracked and enjoy a very high quality development in the future. चीन में साबिक पाकिस्तानी सफीर नुमाना हाशमी का कहना था कि पाकिस्तान और चीन दोस्त होने के साथ साथ अच्छे बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। वीसी जामिया सरगोदा डॉक्टर कैसर अब्बास ने कहा कि पाकिस्तान और चीन का तालीमी, तहकीकी और साइंसी शोबों में बाहमी प्रोजेक्ट शुरू करना इंतहाई खुशाइंद है। एनिवर्सरी है, 10 साल हो गए सीपैक के, और पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन चाइना के साथ 72 ईयर्स हो गए, तो उसकी सेलिब्रेशन में ये इवेंट किया। और हम बहुत सारे प्रोजेक्ट, जैसे कौंसिल साहब ने बताया कि बहुत सारे प्रोजेक्ट हम इनके साथ करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी की प्लेटफॉर्म से। स्पेशली सिट्रस रिलेटेड प्रोजेक्ट सरगोदा के लिए हम कर रहे हैं कि यहाँ पे एक हम इंशाल्लाह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं जिससे सिट्रस रिलेटेड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करेंगे पूरी दुनिया में। Strategic thinking and sagacity of our founding fathers, particularly Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, who understood that when Pakistan would come into existence, and especially if Kashmir, as we were hoping, would be a part of Pakistan, then our biggest neighbor and the longest borders that we would have would be with China. सेमिनार के आखिर पर वाइस चांसलर की तरफ से चीनी मेहमानों को सोवेनिर्स पेश किए गए। कैमरा टीम के हमरा शेख उस्मान, रूही न्यूज, सरगोदा। अब आपको बताएं, सीईओ पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी शाहिद कादिर का बहावलपुर का दौरा। उन्होंने मॉडल बाजार में कायम मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया, दुकानदारों के मसाइल सुने और मौका पर हल करने के अहकामात जारी किए। ताहिर जो एक रिपोर्ट में देखेंगे। बहावलपुर मॉडल बाजार के दुकानदारों की सुनी गई। सीईओ पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी शाहिद कादिर ने बहावलपुर मॉडल बाजार का दौरा किया और वहां मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। उन्होंने दुकानदारों के मसाइल सुने और मौका पर हल करने के अहकामात जारी किए। सीईओ ने सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात पर मैनेजर मॉडल बाजार को शो कॉज नोटिस जारी करने का हुक्म भी दिया।
सफाई का निज़ाम प्रॉपर नहीं है और दुकानदारों ने भी कुछ कहते किए हैं कि गेट नहीं खुल रहा और अपना पिछले हिस्से से बारिश आती है, उनकी मसाइल भी हल कर रहा हूँ फौरी तौर पे। और एक इन्होंने कहा कि किरायों का मसला है, मैं इन्हें कह दिया है कि सोलर पे जा रहे हैं, सोलर इंशाल्लाह 6 महीने 7 महीने में लग जाएगा, आपके किराए भी ख़त्म हो जाएंगे। सीईओ ने दुकानदारों और शहरियों की शिकायत पर सफाई के लिए खुद भी झाड़ू लगाया। उनका कहना था कि 6 माह तक मॉडल बाजार को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। 1 माह के अंदर बहावलपुर के मॉडल बाजार की रौनकें वापस लाएंगे। लड्डे की दुकानें खत्म करके ग्रोसरी शॉप्स कायम की जाएंगी। दुकानदारों के मसाइल को भी तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। मॉडल बाजार जो ट्रैक्ट नहीं कर पाया वो इनकी अपनी कमजोरी है, मैनेजमेंट की और दुकानदारों की। दुकानदार रवैया सही रखें और अपना मैनेजमेंट अपने असर दिखाए। मैनेजर को मैंने कह दिया है कि वो केबल पे भी चलाए और अपना दीगर तरीकों से भी, ये भी सारे मिल के इंशाल्लाह आप महीने में देखेंगे कि यहाँ पे गाहक भी है और अपना और हौसला अफजा करने वाले लोग भी हैं। सीईओ पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी ने डेली वेज मुलाजमीन को रेगुलर करने का मसला बोर्ड मीटिंग में उठाने का भी वादा किया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के सीनियर जस्टिस सफदर सलीम शाहिद की रिटायरमेंट पर तकरीब का इनेकाद। जस्टिस सफदर सलीम शाहिद का तकरीब से खिताब में कहना था कि मनसिब बड़ा नहीं बल्कि इंसान बड़ा होता है। आइन की पासदारी और कानून का एहतराम ही हमें कामयाब कौम बना सकता है। तकरीब का अहवाल जानेंगे महार इमरान की इस रिपोर्ट में। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान ने मिस्टर जस्टिस सफदर सलीम शाहिद के एजाज में तकरीब सजाई। मिस्टर जस्टिस सफदर सलीम शाहिद का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि मनसब बड़ा नहीं होता, इंसान बड़ा होता है। हम किसी भी मनसब पर बैठकर दूसरे इंसानों के लिए काम करें तो मसाइल हल हो जाएंगे। आइन की पासदारी और कानून का एहतराम ही हमें महज़िब और कामयाब कौम बना सकता है। अदालत के तमाम फैसलों को मनोन तस्लीम करना ही कानून की अमलदारी है। ये मौका इसलिए बहुत अहम है कि हम यहाँ इस फिक्र के साथ इकट्ठे हों कि हम लोग, हमारा तमाम का मकसद एक ही है और वो है आइन की बालादस्ती, वो है कानून की अमलदारी, कानून का एहतराम। ये सारी चीज़ें हमारे प्रोफेशन का निचोड़ है। तकरीब में सीनियर जज लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर, जस्टिस रिसाल हसन सैयद, जस्टिस सादिक महमूद खुरम, जस्टिस अहमद नदीम अरशद, जस्टिस रिटायर्ड इल्ताफ इब्राहिम कुरैशी, मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल मिर्जा अजीज अकबर बेग, सरदार लतीफ खोसा, सदर कराची बार आमिर सलीम ने भी शिरकत की। सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी कौम को इसके लिए जो है वह तैयार करना है। हमारे पास जो लिटिगेंट आते हैं उनको इसके लिए तैयार करना है कि हमें कानून की हर बात को मनोहन तस्लीम करना है। उसमें गलतियाँ भी होंगी, उसमें बहुत सी चीज़ें हमारी ख्वाहिशात के खिलाफ भी होंगी, लेकिन इज्तमाइयत पैदा करने का एक ही तरीका होता है और वो है कि आइन की बालादस्ती हो और कानून का एहतराम। Respect which your lordship always extended to the members of the bar is also unprecedented, and the bar, so far as your lordship is conduct towards the member of the bar is concerned, in general and in particular your lordship. तकरीब में सदर डिस्ट्रिक्ट बार सैयद वहीद रजा बुखारी, जनरल सेक्रेटरी सैयद अली अल्ताफ गिलानी, मेंबरान पंजाब बार कौंसिल ख्वाजा कैसर बट, सजाद हुसैन टांगरा, राना तुफैल नून, नाइब सदर राबिया मनाल, लाइब्रेरी सेक्रेटरी महरुन निसा अराई, फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद शरीफ खेड़ा, लॉ ऑफिसर्स इफ्तिखार इब्राहिम, वाजिद हुसैन रिजवी, मेंबरान एग्जीक्यूटिव कमेटी और सीनियर वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आखिर में सदर राना आसिफ सईद और जनरल सेक्रेटरी मार हसीब कादिर ने बार की तरफ से मिस्टर जस्टिस सफदर सलीम शाहिद को यादगारी शील्ड भी पेश की। कैमरामैन मोहम्मद वसीम के साथ मार इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। समाजी तंजीम का बेसहारा बच्चों को खुशियां फराहम करने के लिए अहसन इक़दाम। समाजी तंजीम ने चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो के बच्चों के लिए चिल्ड्रन मेले का एहतमाम किया, जिसमें बच्चों को जॉयलैंड की सैर करवाई गई। मज़ीद इस रिपोर्ट में। मुस्कुराते चेहरों के साथ मौज मस्ती करते और झूले झूलते ये नन्हे बच्चे हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो मुल्तान के, जिनके जॉयलैंड में आने से ईद से पहले ही ईद हो गई है। समाजी तंजीम का चाइल्ड प्रोटेक्शन के बच्चों के लिए जॉयलैंड की सैर का एहतमाम कराना अहसन इक़दाम है। हम यहाँ आए हैं, हमें झूले खाए हैं, हमें गेम खेले, हमें यहाँ बहुत मजा आया है। मैं इधर जॉयलैंड आया हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैंने इधर गेम में खेली है, मेरा दिल बहुत कर रहा है। मेरा वापसी जाने का दिल भी नहीं कर रहा, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मेरे और दोस्त भी आए हुए हैं। यहाँ मैं झूले ले रहा हूँ, बहुत अच्छा है यहाँ पर सब कुछ, और मैं फिर भी आऊँगा वापस।
अपने दोस्तों के साथ आया, मैं इधर घोड़ा चला रहा, मैंने गाड़ी ली है, मैंने वो वाली फिल्म भी देखी है, बहुत मजा आया हम सबको, दोस्तों को। जॉयलैंड में बच्चों को इंडोर गेम्स, हॉरर ट्रेन, XD सिनेमा के जरिए तफरीह फराहम की गई। इनमें खाने पीने की अशिया और तोहफे भी तकसीम किए गए। इस मौके पर PRO चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो मुल्तान राव नवीद मुख्तार, मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल YP रशीद अब्बास खान, मार्केटिंग मैनेजर सुपर स्पेस फनलैंड मोहम्मद अदनान और देगर भी शरीक थे। पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन का पिछले 18 साल से ये खासा है कि ये मुख्तलिफ जॉयलैंड पे बच्चों को ले जाके इनको इंटरटेन करते हैं, इनको ये जो गेम्स हैं इंडोर गेम्स, इनसे एंजॉयमेंट दिलवाते हैं और उसके बाद इनके लिए पिज़्ज़ा पार्टी का एहतमाम करते हैं और इनके साथ पिज़्ज़ा को एंजॉय करते हैं। जो हमें मल्टीपल टाइम हमें खिदमत का मौका दे रहे हैं और हमारी भी पूरी कोशिश होती है कि इस कार्य खैर में हम भी जितना हिस्सा डाल सकें और जितनी हम बच्चों को कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन दे सकें। तो पिछले कई सालों से हमारे बच्चों के लिए जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रिहाइश पजीर लावारिस बेआसरा गुमशुदा बच्चे हैं उनके लिए प्रोग्राम अरेंज करते हैं और यहाँ पे आके बच्चे हकीकी बच्चों को खुशी हासिल होती है और यहाँ पे आके बहुत बच्चे एंजॉय करते हैं। जो अनवांटेड चाइल्ड हैं, ये जो ऑर्फन चिल्ड्रन हैं, उनको विद लेस अपॉर्चुनिटी उनको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना ये बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरा ये कि इनको थोड़ा सा एक्सपोजर मिलना बच्चों को कि ये अपने नॉर्मल यूजुअल लाइफस्टाइल से बाहर निकल के यहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं डिफरेंट चीज़ों को, तो इनमें ड्राइव आएगी। चिल्ड्रन मेले में बच्चे खूब लुत्फानंदोज। बच्चों का कहना था कि इनका जॉयलैंड से जाने का दिल ही नहीं कर रहा। इन्होंने दोबारा जॉयलैंड आने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। चिल्ड्रन मेले के मौके पे चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो के बच्चों का जॉयलैंड आना उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन इरफान असलम के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। हुकूमत पंजाब का गर्मियों की छुट्टियों में 14 साल से कम उम्र बच्चों के लिए हसन इक़दाम। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर क़यादत मुल्तान स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से 2 माह के स्पोर्ट्स कैंप का इफ्तिताह कर दिया गया। तफसीलात के लिए देखिए इब्राहिम खान की रिपोर्ट। हुकूमत पंजाब का गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के लिए मुनफरिद इक़दाम। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर क़यादत सूबा भर के तलबा के लिए स्पोर्ट्स कैंप का इनेकाद कर दिया गया। मुल्तान स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने स्पोर्ट्स कैंप का इफ्तिताह किया। डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर राना नदीम और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर फारूक लतीफ़ का कहना था कि गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के लिए ये प्रोग्राम मुनफरिद है। इन्हीं प्रोग्राम से ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे जो आगे जाकर खेलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की जो हदायत है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने पूरे पंजाब के अंदर ये समर स्पोर्ट्स कैंप्स का जो है ना वो आगाज़ किया है और इसी हवाले से हमें अपने डिपार्टमेंट से डायरेक्शंस मिली हैं। तो इनिशियली हम लोग जो इंडोर गेम्स हैं 5 इसमें समर कैंप्स लगा रहे हैं बच्चों के लिए। इसमें 2 कैटेगरीज रखी हैं, अंडर 8 और अंडर 14। कि यही बेसिक स्टेप होते हैं, यहाँ से जो है नर्सरी निकलती है हमारी और हमने इनके जो ये 2 महीने कैंप्स अरेंज किए हैं। इसमें हमने कॉम्पिटेंट कोचेस जो हैं वो अरेंज किए हैं और आज हमारी ओपनिंग हुई है इसकी। स्पोर्ट कैंप में बैडमिंटन, जिम्नास्टिक, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो और कराटे सिखाए जाएंगे। स्पोर्ट्स कैंप 14 साल से कम उम्र बच्चों के लिए लगाया गया है। ये बेसिकली बहुत अच्छा कर रहे हैं इवन के न्यू जनरेशन्स के लिए, क्योंकि आजकल बहुत से जो न्यू जनरेशन है वो गैजेट्स की तरफ जा रही है, तो ये कैंप्स को ज़रूर होना चाहिए। मुझे बेसिकली कोचिंग के लिए बुलाया गया है मार्शल आर्ट्स की, जो कि एक बहुत अच्छी गेम है बच्चों के लिए ख़ासतौर पे जो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए एक सेल्फ पावर गेम है। हम उनको सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं कि अगर खुदा न खास्ता बाहर जाते हुए उनके साथ कोई हादसा पेश आ जाता है तो उन्होंने कैसे खुद को सेव करना है। बच्चों की ट्रेनिंग के लिए पंजाब भर से नामवर ट्रेनर्स प्रोग्राम में शामिल किए गए हैं। पंजाब की तमाम डिवीजन में स्पोर्ट्स कैंप 2 माह तक जारी रहेगा। कैमरामैन इरफान असलम के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, रोही, मुल्तान।